What if I told you that love, real lasting love, has nothing to do with finding the right person? That's what we believe, isn't it? That if we just find someone who checks all our boxes, someone who makes us laugh, someone who makes our heart race and understands us, then we'll have a perfect relationship. But let me ask you something. How many times have you met someone who seemed perfect and it still did not work out? How many relationships have started in fireworks and ended in silence? And if love was just about finding the right person, why do so many of us still end up lost? Because here's the truth: love doesn't last because you found the perfect person. Love lasts because of what you build with them. Today, we are going to talk about the secret of building a healthy relationship that actually lasts. And I promise you, it's not what do you think. Hi, I'm Anjali. I'm a happiness coach and a therapist. And let's talk about building happy, healthy, beautiful relationships. हर बार की तरह let's start with a story. Again, एक couple की story है. Let's call them for this video Aisha and Rohan. In the end आप बताते ना आप टीम आयशा हो कि टीम रोहन हो, ठीक है? On paper they had everything. जैसे हम आजकल इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं, who have the perfect relationship. They travel together, they have fun together, they work together, they laugh at the same stupid jokes. Their music playlist is almost identical, and they could talk hours and hours without getting bored. Everyone thought कि यार ये तो best couple है. This is the kind of love that lasts forever, no? But over time, things changed. The late night conversations became shorter. टेक्स्ट अब इतने ईगरली सेंड नहीं होते थे और ना ही इतनी जल्दी आते थे. द स्मॉल इरिटेशंस जो एक दूसरे के लिए होती हैं वो एक के ऊपर एक स्टैक होने लग गई, एक अनसेड वर्ड्स की पाइल की तरह. एंड देन वन डे they sat across from each other in a coffee shop. Two people who once swore they could never fall apart really didn't have anything to talk. And here's the crazy part. Nothing big ever happened. मतलब कोई भी ऐसा मेजर क्रूशल इवेंट नहीं हुआ, कोई बिट्रेयल नहीं हुआ, कोई फाइट नहीं हुई, कोई मेजर लाइफ चेंजेस नहीं हुए. बस बहुत स्लोली एक दूसरे से ड्रिफ्ट अपार्ट हो गए. Sounds familiar? I don't know, maybe you've felt something like this before. Maybe you've been in Aisha's shoes or maybe you've been in Rohan's shoes. The question you ask yourself here is why? Why does the love that's even the most kindest, something that always feels right, also falls apart? Kyunki yaar, the truth about a lasting, loving, beautiful, healthy relationship, love is not a feeling. It's a practice. Attraction, chemistry, वो butterflies in your stomach, all of those things are very temporary. They get you in the door. आप दरवाजे के अंदर बस उन feelings की वजह से आ जाते हो. But what keeps you inside is the intention. Is the intention of knowing that this is the person that I want to be with. It's the intention of making a choice every single day with every single breath. Love yaar is not found, it's built. Every single day with the smallest and the quietest ways. It's in the way someone listens to you. Not just to respond, but to understand what you're saying. And to remember बहुत छोटी छोटी चीज़ें, जैसे आपको आपकी कॉफ़ी कैसे पसंद है या चाय में आजकल आप चीनी कम ले रहे हैं क्योंकि शुगर को थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं. It's the way, you choose to be there even on hard days. देखो लड़ाइयाँ सब कपल्स के बीच में होती हैं, बट एक इंटेंट होता है ना कि यार मुझे अपना पॉइंट प्रूव नहीं करना, मुझे ये देखना है कि इस लड़ाई में क्या मैं इस इंसान से कनेक्ट कर पा रही हूँ या नहीं. They're the ones where two people are willing to work with each other.
हर रिलेशनशिप के, हर रिश्ते के, हर प्यार के ना 3 पिलर्स होते हैं. हाउ डू वी रियली बिल्ड इट, हाउ डज इट वर्क, व्हाट हैपन्स? पहली चीज़, सेफ्टी ओवर स्पार्क्स. स्पार्क्स ना इनिशियली एक्साइटिंग होते हैं, दे मेक यू फील अलाइव, बट दे आर नॉट द फाउंडेशन ऑफ लव. कभी कभी होता है कि हम किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं जैसे लगता है कि ओ माई गॉड, टू गुड टू बी ट्रू. बट सेफ्टी एक ऐसी फीलिंग होती है जो आपको उसी इंसान के प्रेजेंस में ना बहुत ग्राउंडेड फील कराती है. इट्स नोइंग दैट अगर आपने अभी अपना सबसे वर्स्ट फियर भी इनके सामने रख दिया ना, तो ये सिर्फ आपको प्रोटेक्ट करेंगे और उससे ज़्यादा कुछ नहीं. सेफ्टी इज बीइंग एबल टू डिसअग्री विद अ पर्सन विदाउट फियरिंग दैट दे विल वॉक अवे. कि अगर आज मैं अपना पॉइंट प्रूव करूंगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान यहाँ से उठ के चला जाएगा. सेफ्टी इज टू नॉट हैविंग टू बेग टू बी चोजन. बार बार दुनिया के हर एक रिलेशनशिप से अपने आप को कंपेयर नहीं करना, उसकी ज़िंदगी के बाकी लोगों से अपने आप को कंपेयर नहीं करना. बिकॉज अ रिलेशनशिप built only on chemistry will burn out, but a relationship built on trust, that will survive each and every storm. बहुत important होता है कि आप ना रिलेशनशिप में रिपेयर वर्क ज़्यादा करो, परफेक्शन मत चाहो. क्योंकि रिलेशनशिप में हम नहीं जाते ना ये सोच के कि अरे ख़त्म हो जाएगा. बट जब कॉन्फ्लिक्ट आता है, जब लड़ाई होती है, तो अपना पॉइंट इतना ज़्यादा प्रूव करना होता है कि सबसे पहला थॉट होता है अबे छोड़ यार, चलते हैं, निकलते हैं. प्रॉब्लम पता है क्या है? फाइट्स की वजह से रिलेशनशिप नहीं टूटता. इट्स द इनएबिलिटी ऑफ आवर्स टू डील विद द सिचुएशन, टू रिपेयर इट. जो हेल्दी कपल होते हैं ना, वो कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड नहीं करते. दे लर्न हाउ टू कम बैक फ्रॉम इट एंड दे डोंट फाइट टू विन, दे फाइट टू अंडरस्टैंड. लेट दैट लैंड ऑन यू. They don't fight to win, they fight to understand. Now next time when you have a disagreement in your relationship, ask, am I trying to prove a point or am I just trying to be connected to my partner? Because if you're trying to be right all the time, you will end up losing more than the argument. रिश्ते यार बहुत खूबसूरत होते हैं अगर तुम उसको टाइम दो. प्यार को ना चूज़ करना पड़ता है अपनी ईगो से ज़्यादा. क्योंकि जब हम किसी के साथ रहने लग जाते हैं ना, हम उनसे अनॉय बहुत जल्दी हो सकते हैं. बहुत जल्दी उनकी छोटी छोटी आदतें हमें परेशान करने लग जाती हैं. और कभी कभी ये बोलना कि मैं गलत हूँ, ये तो हम कर ही नहीं पाते. क्यों? क्योंकि ईगो आ जाती है रिश्तों के बीच में. कभी कभी वेट करते हैं कि यार अब लड़ाई करी है तो ये दूसरा इंसान सॉल्व करेगा, मैं नहीं करूँगी. कभी कभी ऐसा लगता है कि इसने मुझसे ऐसे बात कर कैसे दी. देखो, रिस्पेक्ट ऑफ कोर्स फाउंडेशन है प्यार की, पर जब प्यार होता है ना, वो अपने आप ही बहुत हम्बल होता है. उसमें स्कोरिंग नहीं होती कि तूने ऐसा किया इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ. उसमें प्राइड नहीं होती, उसमें कनेक्शन होता है. इट डजंट वेट फॉर द अदर पर्सन टू फिक्स ओवर थिंग्स. आप वेट नहीं करते कि हाँ अभी इसका मैसेज आएगा तब हम फिर से बात करेंगे, तब हम फिक्स करेंगे. इट्स द आइडिया दैट ओके आई अंडरस्टैंड, मे भी चीज़ें ज़्यादा बढ़ गई पर मैं इसको सॉल्व करना चाहती हूँ और विलिंगली चाहती हूँ. क्योंकि रिश्ते जैसे मर्जी हो, जो मर्जी हो, बहुत मायने देते हैं सिर्फ एक कनेक्शन को, सिर्फ एक वर्क थ्रू को. जब आप रिपेयर से आगे बढ़ते हो, जब आप लड़ाइयों की जगह सिर्फ उस इंसान को चूज़ करते हो. देखो, मैं ये मानती हूँ कि हर रोज़ हर टाइम चूज़ करना भी मुश्किल है, क्योंकि इस इंसान में कैपेबिलिटी भी बहुत होगी आपको ट्रिगर करने की, और उनको पता होगा कि हम ऐसी क्या चीज़ें बोलें जिससे कोई आगे हर्ट हो सकता है. पर इनिशियली जब बटरफ्लाइज का टाइम होता है ना, आपको ये चीज़ पसंद आती है कि हाँ उनका ये होने का आइडिया कितना अच्छा है. अगर वो हमारी ज़िंदगी में है तो हमारी ज़िंदगी कितनी अच्छी है. जब वो सब छूट जाता ना, तब आप इंसान से प्यार करते हो. तो हर बुरे, अच्छे, लड़ाई, गुस्से वाले वक्त में भी आपको पता होता है ये इंसान दिल से कैसा है और ऑन अ डे टू डे बेसिस ये क्या चूज़ करता. इसलिए इंटेंशन हर रिश्ते का सबसे बड़ा पार्ट होता है. एंड एट द एंड ऑफ द डे लव इजंट अबाउट ग्रैंड जेस्चर्स. हाँ, पसंद है, मना नहीं कर रही, मुझ जैसी हर लड़की को ग्रैंड जेस्चर्स बहुत पसंद है. बट सिर्फ ग्रैंड जेस्चर्स से तो कुछ नहीं होता ना यार. इट्स अबाउट द स्मॉल मोमेंट्स दैट से दैट आई स्टिल एंड विल ऑलवेज चूज यू.
even when it is hard, even when it is inconvenient, even when the excitement fades, and that's all that is left is quiet. Then you start hearing that rhythm of commitment. So if you're in love, or if you're looking for love, ask yourself, am I just waiting for love to happen to me, or am I willing to build it? Because the couples that last, they just don't find love, they make it happen every single day. If this spoke to you, if it made you rethink the way you look at love, I really would love to hear from you. थोड़ा आप कमेंट करिए, बताइए कि आपके हिसाब से what is love and what do you think makes love last. I would love to read all of it. और हम जैसे जो लोग कभी कभी प्यार ढूंढने की कोशिश करते हैं, आई थिंक आपके कमेंट्स से उनकी भी काफ़ी मदद हो जाएगी. और सब्सक्राइब करना मत भूलना. अभी अभी यूट्यूब शुरू किया है, तो ऐसी बहुत सारी और वीडियोस आती रहेंगी, और जितना आप सपोर्ट करोगे उतना कि ये काम मेरे लिए आसान होता रहेगा. क्योंकि यार प्यार देंगे तभी तो प्यार बटेगा, और तभी तो प्यार मिलेगा.